right? Unique. Yes. So if the word that begins with U generates a sound of U, it will take a, otherwise it will take a. For example, an understanding. Okay, sir. Shivanjani, are you getting me? Yes, sir. So U से शुरू होने वाले शब्द दो तरह के साउंड देते हैं, Yes, एक sir. U का Before और एक अ का. understanding, we will use an. Before हाँ. unity, we will use a. हम्म, A unity. हम्म. There is a unity among all the employees, Yes, sir. right? Yes, But sir. there is an understanding between both the batsmen. Yes, sir. Clear. Getting it? Yes, sir. Yes, sir. He has an umbrella. He has an umbrella, but he has a unique idea. He has an umbrella, Yes, sir. but he has a unique idea. And sir, what about festival, special festival like Holi, Do not Diwali? use the, we do not use the before Okay. festivals, before disease, before name of days, year or month. However, having said that, let me Okay. clarify. The is like a potato in vegetable. In grammar, the is like a potato. As potato is in a vegetable, the is just like that. Okay, You sir. can mix potato with almost all the vegetables that you cook. Similarly, the, despite all the exemptions, the can be used everywhere, Okay, sir. right? So the Fine. is not an easy game to play with. The is a very difficult and intricate word that can be adjusted everywhere where we are saying that it will not be used there. Fine. ठीक है, जैसे I am playing the होली नहीं होगा, I am playing the होली नहीं होगा. No, sir. लेकिन अगर हम ऐसे बोलें, do you remember the होली when we met? Yes, So sir. here You I are am you are referring to a talking about a particular specific होली. Holi. Yes, sir. Specifically, you are talking about that. Are you getting it? Yes, तो sir. ऐसे अगर आप हमसे पूछिएगा तो फेस्टिवल्स के साथ द नहीं होगा, लेकिन फेस्टिवल्स के साथ द होगा भी. Yes, sir. Got it. Getting it? Yes, sir. ऐसे अगर आप पूछिएगा कि द कोरोना स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, नहीं होगा, कोरोना स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड होगा. But we can say na the 2022 or 2020. हाँ, अब आप कह सकते हैं द कोरोना दैट स्प्रेड इन द इनिशियल फेजेस. Yes, sir. So we are not talking of the entire corona, but we are actually Specific time slot. we are bottling it down to only the initial number of cases. Yes, sir. We are bottling it down to only the initial number of cases. So though is something that can be pushed everywhere and that cannot be pushed everywhere. Fine, sir. So many a time it might happen that you may actually generalize a very common thing. Sure, sir. Right? जैसे Yes, अभी sir. Rishabh said that gold is a costly metal. So we, with the material noun or an abstract noun, we generally do not use gold. Like the gold, the water, The water. the love, Yes, sir. the mother, the father The नहीं mother. होगा, लेकिन ये हो भी सकता है. But कैसे दूसरे होगा? सेंस में. हाँ, अब हम बोले शुभांजलि, the gold chain that you have has a unique design. Yes, sir. Not the diamond chain, not the silver chain, but the gold chain that you have. Yes, sir. Water is life, so every water is life. However, the water in the bottle is contaminated. Getting it? Yes, So sir. the is all pervasive. तो सर गोल्ड के साथ द नहीं लगेगा? ऐसे नहीं लगेगा. अगर आप जनरल बात करें, जैसे अगर हम बोले गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो भैया जो गोल्ड आपके पास है और जो गोल्ड अंबानी के पास है, दोनों की वैल्यू तो बराबर ही है ना. हाँ सर. ऐसा थोड़ी है कि अंबानी वाले गोल्ड की वैल्यू मेरे वाले गोल्ड से ज्यादा होगी. लेकिन जब उसी गोल्ड को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, डू यू रिमेम्बर द गोल्ड वॉच वी बॉट? याद है जो सोना वाला घड़ी हम लोग खरीदे थे? गोल्ड वॉच और गोल्डन वॉच में क्या अंतर है?
गोल्ड वॉच होगा या गोल्डन वॉच होगा? गोल्ड वॉच। गोल्ड वॉच होगा, गोल्डन वॉच नहीं होगा, गोल्डन कलर हो गया सर। गोल्डन कलर होगा। सर तब गोल्डन वॉच ही होगा ना सर, सोना की घड़ी कौन पहनता है? सोने की घड़ी कौन पहनता है? क्या बात करते हैं? हजारों लोग, करोड़ों लोग पहनते हैं सर सोने की मतलब घड़ी। हम लोग तो नहीं पहन सकते हैं सर। हाँ, लेकिन हम लोग अंग्रेजी तो बोल सकते हैं ना। यस सर। हाँ सर बोल सकते हैं। ठीक सर है। आई हैव और सोने सेकंड। की घड़ी में और आमतौर से जो घड़ी आप पहनती है उसमें क्या अंतर होता है? सर क्या बोले? सोने की घड़ी और जो घड़ी हम लोग पहनते हैं, हम आप पहनती होंगी, क्या अंतर होता है? सर बस दाम का फर्क है, बाकी समय तो एक ही बताता है। बहुत बड़ा अंतर है मैडम, क्या सर? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। हाँ सर, सर यस वही सर। तो बोले, प्राइस का अंतर है, नहीं, केवल प्राइस का अंतर नहीं है। अब मेटल का मान लीजिए फर्क है। मैंने अब मान लीजिए मैंने 5,000 की घड़ी पहनी है, किसी ने 5 करोड़ की घड़ी पहनी है, तो मेरे 5,000 की घड़ी वक्त बता रही है, समय वाला वक्त, लेकिन 5 करोड़ की घड़ी उस आदमी का वक्त बता रही है। यस सर। यस सर, अभी अंबानी के बेटे ने अभी हाँ, मेरी 2 घड़ी ये करोड़ बताएगी समथिंग कि की साढ़े घड़ी सात बजा पहनी है या थी। 8 बजा है या 10 बजा है, उसकी घड़ी बताएगी उसका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। बस। वक्त दोनों ही बताते हैं, एक समय वाला और एक इंसान का। यस सर। अभी एक्सक्यूज तो मी अंतर सर। कैसे नहीं है? सर ठीक है? हाँ, सर एक सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज द रजिस्टर? तो वेयर इज द रजिस्टर क्यों होगा सर? वेयर इज वेयर इज द द रजिस्टर होगा, वेयर इज अ रजिस्टर नहीं होगा। वेयर इज द रजिस्टर, वही तो सर, द क्यों लगेगा सर? तो जब हम पूछ रहे हैं कि रजिस्टर कहाँ है, तो जाहिर सा बात है किसी खास रजिस्टर के बारे में पूछ रहे होंगे ना। ओके। अब मान लीजिए आपके घर कोई आता है और पूछता है वेयर इज अ चाइल्ड, तो वेयर इज अ चाइल्ड नहीं पूछेंगे ना, वेयर इज द चिल्ड्रन पूछेंगे, क्योंकि खास बच्चों के बारे में आपसे पूछेंगे ना। आपसे पूरे भारत के बच्चों के बारे में थोड़ी पूछेंगे कि कहाँ है बच्चे। तो यहाँ पर हम जब पूछ रहे हैं कि वेयर इज द कप, तो वेयर इज द कप मतलब कोई खास कप, तो वेयर इज द ओके रजिस्टर। ओके सर। ओके, लाइट आ गया क्या? गेटिंग इट? सो वेयर इज द रजिस्टर? any other thing that you'd like to ask? राइट नाउ नो सर। So shall we move ahead? Shall we proceed with Sure, what sir. we had on Sure, sir. our cards? यस सर। Okay, so I was to begin with the verb. I believe that there are no questions left. In case if there are any question left, please note it down. We'll take it on in the next class. Or even if you come across any problem in this class itself, we can discuss it. So what are verbs? What is a verb? Your actions, presents, Huh? verbs. क्या? जो मतलब हम काम करते हैं उसको वो बताता है एक अपने फॉर्म में। सिर्फ काम जो करते हैं। नहीं, बट मोस्टली हम वर्ब के रूप में उसी को देखते हैं। सर क्लियर करेंगे प्लीज। देखिए, आपकी क्रिया में सब आ गया। यस सर। a word that states any action, emotion, state or condition is called a verb. यस सर।
अब आप इसको समझने की कोशिश करें. How would we really understand what a verb is? अभी तक जो भी चीजें हुई हैं, जो मैंने लिखकर भेजा है, that is there in the box, in your chat box. Is there any problem, any confusion with it? As many things as I have written in the chat box, is there any confusion? Is there any question related to it? Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. So as many lines or as many words as I have mentioned there, is there any questions, any doubts, any query, anything that you got to ask? No, sir. How would we understand verb number one in a sentence? Number two, how would we, what is the benefit of understanding a verb? Why do we need to understand what a verb in a sentence is? Because all things depends on that particular verb. For example, in case if I For say, meaningful, because किसी भी सेंटेंस का मीनिंगफुल अगर कोई चीजें निकलती है तो वो पर्टिकुलर वर्ब की वजह से ही निकलता है. जैसे फर्स्ट में ही है ना कि स्टेट एनी एक्शंस, इमोशन, स्टेट एंड कंडीशन, व्हाटएवर यू आर express your feelings, that so. Now tell me, help me understand one thing. When I have to say I am a good boy, or Shubhanjali works in a particular office, when I have to say these sentences, I would just say these sentences. I would learn how to say these sentences rather than getting deeper into why to understand and analyze what a verb is, or what an auxiliary verb is, what a main verb is, and whether those verbs exist in the sentence or not. Why do I really need to understand, and why do I really need to rack my brain into it? Right? इसमें इतना खोपड़ी लगाने की जरूरत क्या है? Because होगा, नहीं होगा, लगाएंगे, कोई भी verb है, रहने दो. नहीं लगाएंगे तो स्ट्रक्चर सही नहीं होगा. फिर हम कुछ भी बोल देंगे उल्टा पुल्टा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वी विल मिक्स एवरीथिंग इन द वन सेंटेंस. सर दो तरह से ना वर्ब होता है, वन इज एक्टिव वर्ब, सेकंड इज इमोशन वर्ब. वर्ब कई तरीके के होते हैं, एक्टिव वर्ब, इमोशनल वर्ब, स्टैटिक वर्ब, राइट? In broadly, Yes, sir. they can be categorized into two parts, and further both the two parts can be categorized into further two parts each. Yes, sir. Right? वर्ब अभी में तक जो हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स, कुछ पूछना, कुछ जानना, कुछ समझना आप चाहते हैं? नो सर. Nothing. Right? So how many types of, see, understand why do we need to understand a verb? For example, could somebody tell me about a passive voice like Ram plays cricket? What would be the passive voice of this? Sir, cricket is played by Ram. Cricket is played by Ram. Very good. He drinks water. क्या sir? He drinks water. He is drunk by him. Water is drunk by drink him. water. Okay. She was playing in the field. What, sir? She was playing in the field. She was playing in the Field. field. It hasn't played by her in the field. Huh? It is played by her in the field. It कहाँ से आ गया? सर तो यहाँ पे कुछ तो डालना पड़ेगा ना सर. क्यों डाला? गेम इज प्लेइंग गेम सर इसमें, लेकिन ये रूल भी होता है सर कि टेंस भी चेंज होता है, पर अभी याद नहीं है प्रॉपर कि टेंस Structure भी बदल फॉर्म जाता चेंज हो है. जाता है. हाँ, टेंस चेंज होता है. टेंस जैसे सर वो प्रेजेंट का रहता है तो कंटिन्यूअस वगैरह कुछ इस ढंग का शायद चला जाता है. नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं. कुछ तो जो स्ट्रक्चर चेंज होता है सर, मतलब धुंधला धुंधला याद है 9-10 में की पढ़े हैं. स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा. हाँ, स्ट्रक्चर सर वही कहना मतलब था. स्ट्रक्चर चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा. The structure and tense, are two different things. Both are different. Yes, sir. Right? So जी सर. whenever you are converting an active voice into a passive voice,
Always and always remember, there will never be a tense change in the sentence. Right? The structures may be different, but the tense will remain the same. Getting it? Yes, sir. तो playing in the field का क्या बनेगा? Game is playing by her in the field. गेम कहाँ से आया? Where did the game come from? सर तो फिर तो नेहा जी बोलेंगी क्रिकेट इज प्लेड इन द फील्ड, हेमलता जी नहीं बोलेंगी मतलब फुटबॉल इज सर चालू प्ले कर रही है, मतलब जैसे खेल रही है तो गेम ही खेल रही होगी ना, और क्या खेलेगी? ये तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब इसीलिए मैंने सिर्फ गेम बोला, कोई खास मतलब उदाहरण के तौर पर आपसे कोई पूछे कि ताजमहल किसने बनाया तो आप बोलिएगा मजदूरों ने बनाया। मजदूरों के द्वारा बनाया गया। अरे बनाया तो मजदूरों ने ही, मजदूर का नाम थोड़ी मालूम है। अरे गेटिंग मी? अरे चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। एन इंटेलिजेंट बॉय। An intelligent boy. Convert it into a passive verb. I'm just trying to take you through the in-depth of verb, is because this is the moving pedestal. This is the backbone of grammar. This is the backbone of English. So you have to spend time understanding this a lot. Right? Why is verb necessary, and why is verb the engine of the vehicle that is called grammar? Verb is the engine of the vehicle that's called grammar. So if there is any flaw, there is something wrong with the engine, the vehicle will not run perfectly. So try and understand verbs very, very clearly. Scratch my brain in case if you don't understand anything. मेरा सर नोच के रख देना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है? तो हाँ, he is an intelligent boy. How would you convert it into a passive verb, or what would be its passive verb? सर स्ट्रक्चर में भूल गई हूँ, इसलिए मैं आंसर नहीं कर रही हूँ। तो बहुत सीधी सी कहानी है, आप इस पर एक बात को समझो कि जब तक हमें मेन वर्ब का पता नहीं होगा, हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और जब तक हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक उन चीजों का पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। नहीं बनेगा। यस सर। तो अगर पैसिव वॉइस किसी सेंटेंस का बनाना है, if we have to turn an active into a passive voice, we must know what the object is, and we can find an object only when we are completely and fully aware of what the main verb is. So it is linked. If we have a flaw in understanding what a main verb is, we'll never be able to get the right object, and if we are not able to get the right object, we'll never be able to turn it into a passive voice. Exactly. So it's a link. Yes sir. राइट? तो पहले मैं आपको वर्ब बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट बताऊंगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। There is a background sound coming from somebody's background. Could the person please go on a mute? I guess Aparna ji, perhaps it's coming from your background. I think everything is okay there. Yeah. What, I hope sir? everything is okay there. I think there's a background sound coming from your place. So is everything Yes, okay sir. there, or are you sitting near any roadside? नहीं सर, ठीक है। Are you sitting in a beehive? Sir, You understand what a beehive means? I am sitting in dining table, sir, and there is चलिए, kitchen nearby me. अगर कोई आपसे बोलता है I live in a beehive, इसका मतलब क्या होता है? सर beehive तो मधुमक्खी के छत्ते को कहते हैं। हाँ जी, बट अगर कोई बोले I live in a beehive, मतलब आप परेशानी में हैं। I live at a very crowdy place. Yes, भीड़ में बैठी हूँ। भीड़ भाड़ वाले जगह को कहते हैं beehive. Beehive. क्या कहते हैं हेमलता जी? Beehive, crowded. beehive नहीं, तो सर
Beehive. beehive, beehive नहीं, beehive. beehive. Getting it? Yes, sir. सर मधुमक्खी के छत्ते को जो बीहाइव कहते हैं उसका कुछ स्पेल अलग रहता है क्या? नहीं, यही है. डैश लेकिन बीच में शायद नहीं पड़ता है. किसमें? नहीं, मधुमक्खी के छत्ते में नहीं पड़ता है क्या? हाँ, डैश नहीं पड़ता है जी. एक बार इसको पढ़िए और मुझे समझाइए थोड़ा सा. In English, a sentence is dependent on verb and its meaning changes according to the change in the pattern of verb. इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है वो वर्ब पे डिपेंड करता है एंड इट्स मीनिंग चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज. और जो सेंटेंस का रिक्वायरमेंट जो चेंज होता है उसके हिसाब से बाकी की चीज़ें जो मीनिंग जो होती है एग्जैक्टली चेंज हो जाता है. सर यू आर नॉट ऑडिबल. यू आर कैन यू प्लीज I'm sorry, I was on. हाँ, एक बार जरा फिर से कोशिश करिए. इसको बोलने के लिए कि इसका मतलब समझाने के लिए? इसका मतलब समझाइए एक बार मेरे को. I am Sir. just putting my camera off for a minute, but I am there. ओके सर. जरा मीनिंग समझाइए. इंग्लिश सेंटेंस के अंदर सर जो सेंटेंस होता है वो वर्ब के ऊपर टोटली डिपेंड करता है एंड इट्स मीनिंग चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज. मतलब किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उसके एग्जैक्ट मीनिंग के हिसाब से वो उसकी जो वर्ब होती है वो पूरी की पूरी बदल जाती है. नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. कोई और समझाना चाहता है? थोड़ा सा, आधा सही है, आधा भी सही है, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ. Does somebody else want to make me understand? अपर्णा जी, हेमलता जी, मेघा जी, नेहा जी. Does somebody else want to try her hands at it? देखिए, इसके कहने का अर्थ है कि इंग्लिश में जो कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जो आप वर्ब के बिना बना लें. इंग्लिश में ऐसा कोई वाक्य है ही नहीं जो बिना मेन वर्ब के बन जाए. उसमें एक वर्ब होना जरूरी है, अति आवश्यक है. राइट? गेटिंग इट? अब वो वर्ब जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है. बिना वर्ब के आप अंग्रेजी का कोई भी वाक्य बना ही नहीं सकते हैं. अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप चाहे तो ट्राई कर लीजिए कि बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते. किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है क्या अभी कि अच्छा बिना वर्ब का भी सेंटेंस तो बनता है? हाँ, किसी के दिमाग में कुछ भी अगर आ रहा हो तो एक बार कोशिश करके देखिए. तो हम नहीं बना सकते हैं. राइट? सॉरी. और जैसे ही वर्ब का पैटर्न चेंज होता है, वर्ब का पैटर्न चेंज करने का मतलब वर्ब का रूप बदलता है. जैसे वर्ब का रूप बदलेगा वैसे ही वाक्य का अर्थ बदल जाएगा. वर्ब का रूप बदला, वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा. उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि एक सेंटेंस है, आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ. मैं मैं खेलता हूँ. खेलता हूँ.
अब एक सेंटेंस है आई प्लेड। आई प्लेड मतलब मैंने खेला। मैंने खेला। मैंने खेला या मैं चाहता हूं आप ये सारी चीजें लिख लीजिए। हाँ। Clear? So now you have these 5 sentences before you on a chat screen. आपके chat screen पर अब ये 5 वाक्य हैं, right? Yes, sir. Now, can somebody help me understand the differences between these 5 sentences? यस सर। Now, first of all, पहले मैं पूरा कर लूं। First of all, अगर आप सारे वाक्यों को देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट तो सेम मिलेगा सब में। सब्जेक्ट सेम है, आई। सब में सब्जेक्ट आई है। यस सर। वर्ब सेम है या वर्ब अलग अलग है? सर वर्ब सेम ही है बट टाइम के हिसाब से।
वर्ब सेम है लेकिन वर्ब के पैटर्न मतलब वर्ब का फॉर्म अलग अलग है। यस वर्ब सेम है, वर्ब सब में प्ले है, बट वर्ब का पैटर्न बोले तो वर्ब फॉर्म, वर्ब का पैटर्न या वर्ब का फॉर्म अलग अलग है, राइट। और जैसे यस ही वर्ब का फॉर्म बदलता है वैसे ही वाक्यों में भी परिवर्तन हो जाता है। Am I clear until here? यस सर मेघा जी, नेहा जी, हेमलता जी, यस सर कौन चला गया? अपर्णा, यहाँ तक क्लियर है सारी कहानी? अब अगर आप सेंटेंस नंबर 2, 3 एंड 4 देखेंगे, थोड़ा गौर से देखें सेंटेंस नंबर 2, 3 एंड 4। तो सेंटेंस नंबर 2, 3 और 4 को अगर आप गौर से देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो 2, 3 एंड 4 आर कन्वेइंग द वेरी सेम मीनिंग कि खेल खत्म हो गया और मैंने खेल लिया, राइट। सेकेंड में भी यही बोल रहा है कि मैंने खेल लिया एंड द गेम इज ओवर। थर्ड भी यही बोल रहा है कि मैंने खेल लिया एंड द गेम इज ओवर। और फोर्थ भी यही बोल रहा है कि मैंने खेल लिया एंड द गेम इज ओवर। सो हियर कम्स द वाइटल पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट अगर मैंने खेल ही लिया और खेल खत्म ही हो गया तो मुझे 3 अलग अलग तरह से वाक्यों को क्यों बोलना है? मेघा जी, इज माय क्वेश्चन क्लियर? नेहा जी, शुभांजलि, हेमलता जी, इज माय यस क्वेश्चन सर क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? कैन आई एक्सप्लेन सर? प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। सर जैसे मैं पढ़ी थी कि आई प्ले मैं खेलता हूँ फर्स्ट, बट ये नहीं बताया गया कि मैं खेलता हूँ तो मैं कब जैसे प्रेजेंट में खेलता हूँ या मुझे वो गेम आती है मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये सर प्रेजेंट। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे अगर बोलना है कि मैं रोज खेलता हूँ, मैं रोज खेलता हूँ, तो मैं क्या लगाऊं? आई प्ले डेली, आई प्ले एवरी डे, आई प्ले पर डे। I play every day. एवरी डे या पर डे या होता डेली? सर, तीनों तो एक ही हो गया सर। आई प्ले पर डे, आई प्ले पर डे, आई प्ले डेली, आई प्ले एवरी डे। अगर आप हिंदी बनाएंगे तो तीनों की हिंदी तो एक ही होती है, यस सर। तो कोई भी लगा देंगे। No, sir. तो क्या अंतर है? थोड़ा गेस करिए, या कोई अंतर नहीं है, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं। सर एवरी डे तो हो सकता है बट डेली और पर डे। सर आपके एक्शंस के ऊपर आई थिंक ये डिपेंड करता है, जिसकी वजह हिंदी से में वाक्य है कि मैं रोज खेलता हूँ। हाँ मैं रोज खेलता हूँ, तो अब हम क्या लगाए? मेरे पास 3 विकल्प हैं, एवरीडे, डेली या पर डे। आई प्ले एवरी डे। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई लोग फंसते हैं यहाँ पर। अच्छा, यू टेक योर लंच डेली कि यू टेक योर लंच एवरी डे, या यू टेक योर लंच पर डे? सर लंच कभी स्किप नहीं कर सकते, अगर मेरा फास्ट है तभी स्किप करेंगे, तो आई थिंक वी विल टेक हैबिचुअल एक्शन है। अब जैसे, अब देखिए जनरली क्या होता है ना कि पहला वाला जो सेंटेंस है वो हैबिट को बयान करता है, आदत, यस सर। राइट। हाँ, अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो गए तो उसको लिया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर आदत क्या है? आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, तो आई सेलिब्रेट माई एवरी बर्थडे, तो ईयर, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे साल में एक ही बार ना, एवरी ईयर। तो लेकिन है तो हैबिचुअल। देन ठीक है, तो ड्यूरेशन से हैबिट को कोई खास लेना देना नहीं होता। कुछ कुछ चीजें हैं जो रोज करते हैं, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो एक अंतराल पर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम थर्सडे को या सैटरडे को या किसी भी एक दिन हम व्रत रखते हैं, सो दैट इज अ हैबिट, वी डोंट डू इट एवरी डे।
So generally we actually confuse ourselves that habit is something that we do every day. Habit is something that is done at a particular time. तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा. I'll deal with this question later on. इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कभी पूछ लीजिएगा. अभी I don't really want to deviate from what we were doing. अभी मेरा क्वेश्चन बहुत फर्म है कि what difference could you see between the second, third, among the second, third and fourth sentence? पर सिंपल प्रेजेंट में आई प्ले मैं खेलता हूँ. ठीक है. आई प्लेड मैंने खेला. ठीक है. आई हैव प्लेड मैंने खेल लिया था. खेल लिया था. मैं खेल चुका हूँ. सर आई हैव प्लेड जो होता है वो आपका प्रेजेंट टेंस में ही जो काम खत्म हो चुका है उसको भैया काम तो तीनों में ही खत्म हो गया ना. तो सर वो आपका प्रेजेंट में परफेक्ट रूप से खत्म होता है. और पास्ट में क्या मतलब इम्परफेक्ट रूप से खत्म होता है क्या? सर जो काम मैंने अभी अभी खत्म किया, जस्ट जो काम अभी अभी खत्म किया है वो इसका आप जिसको एहसास करते हैं, जैसे कि सर मैंने अभी तुरंत लंच खत्म किया. ठीक है, वेरी गुड. तो आई हैव इटन लंच. अच्छा हेमलता जी, आप एक बात बताइए, आप वेजिटेरियन हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं? सर आई एम नॉन वेजिटेरियन. आप नॉन वेजिटेरियन. तो अंग्रेजी को थोड़ी देर साइड में रखिए, और ये सबके लिए है. इट इज नॉट ओनली फॉर हेमलता जी, इट इज फॉर एवरीवन. कि हेमलता जी अब एक बात बताइए, आपने 10th कब पास किया? सर 10th कब पास किया? 1993 सर. 1993. तो 93. 7 and 20, it is almost 30 years now. यस ऑफ कोर्स. लगभग 30 साल हो गए 10th पास किए हुए आपको. हाँ या ना? यस सर. और आपने अंतिम बार नॉनवेज कब खाया था? सर अंतिम बार मैं नॉनवेज थोड़ी खाई थी, मैं तो खाते रहती हूँ. मतलब लास्ट टाइम, आज के पहले आपने नॉनवेज कब खाया? आई थिंक डे 2 दिन आफ्टर, पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले? डे बिफोर यस्टरडे सर. डे बिफोर यस्टरडे मतलब 2 दिन पहले, राइट? परसों खाया था तो 2 दिन पहले हो गया. 2 दिन पहले खाया था आपने नॉनवेज. यस सर. ठीक है. तो अब मैं आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ, अंग्रेजी में सवाल नहीं पूछ रहा हूँ. ठीक है हिंदी सर. में सवाल पूछिएगा, और ये सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. अभी जैसे हेमलता जी ने हमें समझाने की कोशिश की कि अभी अभी हमने काम खत्म किया है, इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया है, राइट? अब आप मुझे एक बात बताइए हिंदी में ही, आपसे अगर कोई पूछे कि आप मैट्रिक पास किए हैं कि किए थे, आप मैट्रिक पास हैं कि मैट्रिक पास थे? मैट्रिक पास है. मैट्रिक पास हैं, लेकिन ये काम तो 30 साल पहले खत्म हो गया. सर उसका अस्तित्व तो है ना, अभी तक बरकरार है. आपने नॉनवेज खाया है कि खाया था? सर वो तो नहीं बता खाया सकते. है, जवाब दीजिए. खाया है, खाया था? खाया था. क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे इसलिए कि मैट्रिक आदमी जनरली एक बार ही, या फिर हो सकता है कि उसका रिजल्ट खराब हुआ तो 2 बार दे सकता है बस. लेकिन नॉनवेज का मैं कैसे बताऊंगी सर, वो तो हम लोग बराबर खाने वाली चीजें तो बराबर ही खा रहे हैं. वो तो आदत में हो गई थी. वो तो 1 घंटा आदत. पहले ही है. मैं आदत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर अब ये मैं आपसे पूछूं कि आपने परसों नॉनवेज खाया है कि खाया था? खाया था. खाया था चल रहा है. अब बताइए यहाँ पर डिफरेंस कि 2 दिन पहले जो काम हुआ वो पास्ट में चला गया, और 30 साल पहले जो काम हुआ वो प्रेजेंट में है. क्योंकि हम उसका यूज कर रहे हैं सर. सर्टिफिकेट कहाँ सर्टिफिकेट का आप रोज यूज करती हैं? कहाँ आप सर्टिफिकेट तख्ता पे टांग के चल रही हैं कि हम मैट्रिक पास हैं? सर ये सर अपने फर्स्ट में डेफिनेशन में दिया ना कि कई बार पैटर्न के हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर बदलता है उस पे सेंटेंस डिपेंड करता है. तो आई थिंक डिपेंड करता है, बट मेरे पूछने का अर्थ यह है कि Yes, यदि आपसे कुछ चीज पूछी जाए तो आप किस हिसाब से ये तय करेंगी कि वहां पर हैव लगाएंगे या हैड लगाएंगे या दोनों में से कोई नहीं लगाएंगे? पास्ट प्रेजेंट सोच के, बिकॉज बोलते हैं ना कि हम परसों मार्केट गए थे, हम परसों हाँ. स्कूल गए थे. हाँ. तो हमेशा हिंदी में तो हम पास्ट में ही बात करते थे. हम ये कभी नहीं बोलते कि हम परसों गए हैं वहाँ. परसों ठीक गए हैं वहाँ मतलब कि आज भी जाएंगे. हम्म. डॉक्टर के यहाँ परसों गए हैं, आज फिर जाएंगे.
लेकिन अब डॉक्टर के पास चले गए, अब नहीं जाना है, मतलब हम परसों गए थे डॉक्टर के तो पास, कैसे बोलेंगे? अच्छा चलिए, हम परसों डॉक्टर के पास गए थे, हम कैसे बोलेंगे? आई हैड विजिटेड, आई हैड ही लगाएंगे सर। हैड ही लगाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 99% ऑफ वेरी वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर्स मेक अ मिस्टेक। लाइक हम गए थे, हम जा चुके थे, हम गए, ठीक है। अगर एक सेंटेंस ऑफ पास्ट है, यू आर टॉकिंग ऑफ ओनली वन इंसिडेंस ऑफ पास्ट, राइट? एग्जैक्टली। You are talking of only one incidence of past. So when you are talking of only one incidence of past, you should never use had with it. मैं गया. Can you explain once again? Whenever you are expressing only one event of the past, जैसे हम कल डॉक्टर के पास गए थे, बस यही बोला है. Yes sir. ये एक इंसिडेंस है पास्ट का. हम खाना खा लिए थे. One incident, yes sir. One incidence. हम शुभांजलि से परसों बात किए थे. One incidence. One incident, yes sir. हम हेमलता जी के पास पिछले साल गए थे. One incidence. Yes sir. तो कभी भी आप पास्ट के किसी भी एक इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी इंसिडेंस हो, कैसा भी इंसिडेंस हो, कभी भी भूल कर भी हैड का प्रयोग उसके साथ मत करिएगा. हैड के साथ हैव तो लगेगा। हैव एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी मैं हैड में डिफरेंस बता रहा हूँ. हैव पे अभी मैं आया ही नहीं. ओके सर. नहीं आ रहा है, हैव पे अभी मैं नहीं आया हूँ. मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ जहाँ पे 99% लोग इंग्लिश में गलती करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक्स. जहाँ भी हम लोगों को जो स्कूल्स में पढ़ाया गया है कि जहां भी चुका था है, लिया था है, वहां पर हैड लगा दो. यही पढ़े होंगे ना? यस सर. चुका था, गया था, लिया था, खाया था, पिया था, हंसा था, या खा चुका था, खा लिया था, जा चुका था, चला गया था, कर चुके थे, किया जा चुका था. ये जहां भी अंतिम में था लगता है वहां पर हैड लगा. यही पढ़ाई हुई है स्कूल में. यस या नो? यस सर. It's a completely wrong way of treating English. पास्ट के किसी भी एक इंसिडेंस के लिए आप हैड का प्रयोग नहीं करेंगे. मैं जा चुका था, मैं चला गया था, मैं गया, सब होगा आई वेंट. मैं खेल चुका था, मैंने खेला. I went to doctor residency. Absolutely not applicable. ओके सर. जैसे हिंदी में तो बना देते हैं क्वेश्चन कि मेरे आने से पहले वो सब खाना खा चुका था. एग्जैक्टली. अब ये जो आपने वाक्य बोला एक बार फिर से दोहराइए. मेरे आने से पहले वे लोग खाना खा चुके थे. अब यहाँ पास्ट के कितने एक्शंस हो रहे हैं? मेरे आने से पहले. मेरे आने से पहले खाना खा. दो एक्शन. एक मेरा आना, दूसरा लोगों का खाना खाना. यस सर. खत्म करना. एक मेरा आना, दूसरा लोगों का खाना खाना. तो यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव एक्शंस ऑफ द पास्ट हैं. यस सर. तो पहला जो एक्शन होगा उसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे, और दूसरा जो एक्शन होगा उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे. जैसे एवरीवन had had their lunch before I came. Everyone had had their lunch before या dinner या breakfast या meal before I came. So यहाँ पे आप दो इंसिडेंसेस की बात कर रहे हैं. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी. So the train had departed before I got to the station. Yes sir. Right? मेरे लॉगिन करने से पहले ऋषभ ने आंसर दे दिया था. Yes sir. So Rishabh had answered all the queries before I logged in. Getting it? तो had का प्रयोग पहले समझ लीजिए कि had का प्रयोग हर पास्ट में नहीं किया जाता है. had के साथ एक adjoining sentence होना बहुत निहायती जरूरी है.
मैं गया, आई वेंट, मैं गया था, आई हैड गॉन नहीं होगा। Yes, sir. I am समझ रहे सर अब थोड़ा थोड़ा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? नो Yes, सर it's clear. थोड़ा समझ आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? सर। जब I'm दो teaching you सेंटेंस to a very, very different concept than what you studied in your school or in your colleges. जो आपने स्कूल या कॉलेज में अभी तक पढ़ा था, I would not say that was wrong, but that was not completely right either. उसके साथ सिंपल पास्ट लग जाएगा सर, जब सिंपल बात करनी है। कोई भी एक घटना, पास्ट की कोई भी एक घटना, इसको एज सिंपल एज दिस याद रखिए कि पास्ट की जब कोई भी एक घटना बोल रहे हैं, चाहे वो चुका था, लिया था, गया था है या नहीं है, लेकिन पास्ट की अगर एक घटना है तो वो हमेशा ही सिंपल पास्ट में बनेगा। यस सर। राइट? यस। क्लियर? हाँ सर। यस। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई डाउट्स यहाँ तक? नहीं सर, अब क्लियर हो गया, पहले नहीं था सर, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? कल हम वहां गए थे तो क्या बोले? आई हैड गॉन देयर यस्टरडे या आई वेंट देयर यस्टरडे? I I went went there. there yesterday. आई वेंट देयर यस्टरडे। Yesterday. राइट? कल Yes. मैंने शुभांजलि को फोन किया था तो आई हैड कॉल्ड शुभांजलि अप यस्टरडे या आई कॉल्ड अप शुभांजलि यस्टरडे? I You- called up. आई कॉल्ड अप। Yes, sir. राइट? लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे शुभांजलि ने फोन किया था इसलिए मैंने उसको कॉल बैक किया था, She had I- called. Yes, sir. That is तो why पहले I. फोन, हाँ, शुभांजलि हैड कॉल्ड मी अप, Called me. आई कॉल्ड हर अप। Yes, sir. Exactly. समझ में आ रहा है? अब हैड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? Yes sir, दो सेंटेंस के साथ हम had लगा सकते। दो सेंटेंस नहीं, यहाँ पर आपको फिर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको फिर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब दो एक्शन कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब आसपास की घटी हुई, Hmm. जब दो एक्शंस आसपास की घटी हुई हो, उदाहरण के तौर पर मैंने गांव से 10th किया था और शहर से 12th किया था। मैंने गांव से 10th किया था और शहर से 12th किया था, तो दोनों के बीच का गैप कितना था? 2 साल का। 2 साल का। तो ऐसे दो एक्शंस के बारे में हम हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे में दोनों ही एक्शन सिंपल पास्ट में बनेंगे। I completed my boards from village and I completed my +2 from the town या from the city, क्योंकि ये two distinct actions of the past है, consecutive actions of the past नहीं है। Am I clear or am I making it more ambiguous? सर एक दो सेंटेंस और क्लियर कर दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हम बोलें कि मेरे पहुंचने से पहले शो शुरू हो चुका था। मेरे पहुंचने से पहले Before the show has started. The show has started before I had come. अब यहाँ पर एक चीज को समझिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्टार्ट और एक होता है बिगिन। began. एक होता है स्टार्ट और एक होता है बिगिन। अब इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? द शो हैड स्टार्टेड बोले या द शो हैड बिगिन बोले, द क्लास हैड स्टार्टेड बोले या द क्लास हैड बिगिन बोले, द मूवी हैड स्टार्टेड बोले या द मूवी हैड बिगिन बोले। क्या बोले हम? Show has started. अब यहाँ पर अंतर समझ लीजिए दोनों का, स्टार्ट और बिगिन का, क्योंकि ये क्या है, इनके अलग अलग क्लासेस नहीं होते हैं इन सब वर्ड्स के, तो एज एंड व्हेन जहां पर भी ये आ जाते हैं वहीं पे इसको क्लैरिफाई करना जरूरी हो जाता है। राइट? तो अब यहाँ पर डिफरेंस समझिए कि बिगिन का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर किसी चीज के शुरू होने का और खत्म होने का समय निश्चित हो। जैसे कोई भी अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो उसका समय निश्चित है, 12 बजे शुरू होगा, 3 बजे खत्म। राइट और रॉन्ग? Yes sir. So the show had begun. The show had begun. Right? The movie had begun.
Getting it? The program had begun. The episode had begun. हम लोग सीरियल बोलते हैं, सीरियल चालू हो गया. It is not serial, it is episode. Episode has begun. A collection of episodes is called a serial. The movie had begun, the show had begun, the game had begun. जैसे क्रिकेट मैच में भी होता है, क्रिकेट मैच में भी होता है, राइट? एक टाइम फिक्स होता है. अब ये और बात है कि कोई टीम मान लीजिए 5 ओवर में ही आउट हो गई, तो ये और कहानी है. गेटिंग इट? तो बिगिन का प्रयोग फिक्स टाइम, जैसे माय एग्जाम्स हैव बिगन, बिकॉज एग्जाम के शुरू होने का और खत्म होने का डेट निश्चित होता है. हाँ, अब बीच में मान लीजिए कोई एपिडेमिक आ गया, कोई दंगा हो गया, कोई फसाद हो गया, पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, ये सब अलग कहानी है. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. So begin is used for certain time activities. Start is used for uncertain. जैसे the party has started. अब उसके पार्टी के शुरू होने का कोई समय नहीं है. तो begin को 2 जगह यूज करते हैं, जहां certain time of activity निश्चित है. दूसरा with natural things, जैसे the rain has begun या it is beginning to rain, बारिश शुरू हो रही है, right? It is beginning of the summer. ये गर्मियों की शुरुआत है. Getting it? It is not the starting of the summer. Okay. Are you getting the difference? See, normally people do not really take care of such minute things. However, when you're talking to a person who knows English well, he would take care of these things. And while maybe when you're teaching your kids, when you're teaching your children, right? These are the things that are very, very important for them to really understand the basic concepts. हम लोग यहाँ पे जानते हैं, मैं भी बोलता हूँ कभी कभार, but do you know kids, 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 right? Kids मतलब क्या होता है? बच्चे बच्चे होते हैं. But do you know the royal court means the Charles and Elizabeth, नाम सुने, king या queen? Yes, sir. British emperors, British rulers, right? They are restricted from being called kids. उनके बच्चों को kids आप नहीं बुला सकते हैं ब्रिटेन में. Prince. उनके रॉयल कोर्ट के, रॉयल हाउस के, रॉयल फैमिली के किसी भी बच्चे को आप प्रिंस नहीं बुला सकते हैं. इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. Then इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. आपको सजा हो सकती है वहां पर किड्स बोलने पर. उनके बच्चों को आपको चिल्ड्रन कहकर ही संबोधित करना पड़ेगा. उनकी जो मैट्रेस होती हैं, ये आपको पता है, उनके जो बच्चों की देखभाल करती हैं, उनके जो बच्चों की देखभाल करती हैं, उनका एक 3 साल का कोर्स होता है. 3 साल के कोर्स के बाद उनको एक एग्जाम पास करना पड़ता है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है. एंड ओनली 10 out of 100 candidates, only 3 of them are selected as the matrons of their houses to take care of the kids. 3 साल का कोर्स करना पड़ता है. And the word kid is taught as a restricted word. You cannot use kid for children there. It's considered to be unparliamentary. हम लोग यहाँ धड़ंगे से यूज करते हैं, ये और बात. सर हम लोग बोलते हैं ना, देयर आर मेनी किड्स. हाँ, but in a proper English language, especially for royal courts, especially for royal families, you cannot use kids. उनके बच्चों Yes, के sir. लिए आप kids यूज नहीं कर सकते. रॉयल फैमिली के बच्चे को ना सर, ये अदर एक बच्चे, अदर अदर, आप कुछ भी यूज करिए, उनको क्या लेना देना. ओके, मैंने रॉयल फैमिली के बच्चे को चिल्ड्रन ही बोलना है. चिल्ड्रन ही बोलना, उनको आप किड्स नहीं बोल सकते. राइट? Yes. तो ऐसा है. तो हैड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर, आपने एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, आई हैड प्लेड.
हाँ, इसीलिए मैंने लिखा कि आई वांटेड टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन आई प्लेड एंड आई हैड प्लेड. So I had played is an incorrect sentence unless there is an additional sentence put either before it or after it. Right? Yes. I had played before he came. Hmm. I had played before my mom called me up. I had played before she saw me. Right? तब ये सेंटेंस कहीं जाकर सही होगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. क्लियर? Yes, sir. अब कहानी बच जाती है. मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा. अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ पावर कट. द इलेक्ट्रिसिटी हैज assumed just now, so there's been a power cut. I have an entire presentation for it. So in the next class I'll give you a complete presentation and a complete detail of what are the verbs and how are the verbs different, और इन सारे sentences में difference क्या है, right? Okay, What sir. is the difference between these sentences? If you want me to do that, I can send you over the WhatsApp as to what is the basic differences between these sentences. Sir, can you clear? I have some questions. हाँ बोलिए ना प्लीज. सर वो जो आपने बताया एवरी डे, डेली और पर डे, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे? अभी क्लियर कर दें. सबसे पहले समझिए कि आई प्ले, चलिए आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट एवरी डे कि आई प्ले क्रिकेट डेली? पहले एवरी डे और डेली में अंतर समझते हैं. क्या अंतर? तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिस पे आप ग्रामेटिकली कोई भी सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब उसमें टू है. जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आई लव यू टू. Hmm. आई लव यू टू. True. Yes, sir. जाहिर सा बात है आप लोगों ने कभी बोला होगा, कभी सुना होगा. Hmm. वैसे इमोशंस में जाए तो इसमें कोई एरर नहीं है. ग्रामर में आए तो इसमें एरर है. Grammar बताइए सर. ग्रामर में एरर है. तो ग्रामर में होना चाहिए आई टू लव यू. TOO. Yes. You Yes, can sir. never end a sentence with to, also, daily, But सर हम लोग तो करते हैं. preposition. सर हम लोग तो बोलते आई लव यू बेटा, आई लव यू टू बेटा. I love बेटा Even- बेटा सब even- चलेगा. I love you too is grammatically a wrong sentence. सर इसके अलावा कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर बोलते हैं तो लास्ट में तो टू एंड ऑल्सो दोनों लगाते हैं बिफोर फुल स्टॉप. इट इज गलत रॉन्ग है. सेंटेंस. गलत. It's Okay. absolutely wrong. अच्छा. Right? आई अब एम जैसे डूइंग कहें ऑल्सो. हाँ आई एम Also. डूइंग ऑल्सो. आई एम डूइंग टू. I'm also आई एम डूइंग द सेम टू और doing the same is okay. ओके एंड आई एम डूइंग ऑल्सो. गलत. I'm also doing this. आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम. और आई एम ऑल्सो बोलने की जरूरत ही नहीं है. अभी उदाहरण के तौर पर जैसे मैं खाना खा रहा हूँ. अभी आपने मेरे को फोन किया, आपने पूछा मैं खाना क्या कर रहे हो, मैं बोला मैं खाना खा रहा हूँ. तुम क्या कर रही हो? तो मैं भी खाना खा रही हूँ. तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब जैसे मैं बोलूं कि आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई मील, आई एम हैविंग माई मी लंच. टू. यस ऑल्सो माई. मी टू. यहाँ पर हो जाएगा सो एम आई. एंड मी टू. गलत है. मी टू इज नॉट एट ऑल. एक चीज को समझिए. अभी मैं जब आपको वर्ब को डिटेल कर रहा था तो मैंने एक वाक्य आपसे पूछा कि क्या आप कोई एक सेंटेंस सोच सकती हैं जो वर्ब के बिना बन जाए? नो. तो मी और टू, कैन इट बी कॉल्ड अ सेंटेंस? नेवर सर. एग्जैक्टली. It does not have a verb at all. Okay. Fine.
Are you getting the logic? Are you Yeah, getting are you getting the rules? You can never ever form a sentence. Number one. Number two, मैं आपको कई रीजन बता सकता हूं ये सेंटेंस क्यों गलत है। सबसे पहला तो इसमें वर्ब नहीं है, राइट, नंबर वन। नंबर टू, मी क्या है? मी pronoun है। मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मी को कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही टोल्ड मी। सब्जेक्ट के जगह पर प्रोनाउन केवल 6 इस्तेमाल होंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी और एक लास्ट में इट बचता है। It, yes sir। इसके अलावा सब्जेक्टिव प्रोनाउन और कोई नहीं हो सकता है। तो सर कैसे आंसर करेंगे? If I am saying So that am I I. am So having my am I. dinner, so So I'm am I। having my dinner and what are you doing? और अगर आप भी डिनर कर रही हैं तो आप सिंपल कहेंगे so am I. Okay sir। So do I. तुम क्या करती हो? तुम क्या करती हो? I am a student. अच्छा, तुम क्या करते हो? So do I. I am also a student. I am a student also नहीं, I am a student also का मतलब समझ रहे हैं? मैं स्टूडेंट भी हूं, मैं भी स्टूडेंट नहीं हूं, मैं स्टूडेंट भी हूं। मतलब कुछ और भी हूँ। हाँ, Exactly। so understand the difference. I love you too. I love you too. जैसे राम से प्यार करते हैं, मुकेश से प्यार करते हैं, सुरेश से प्यार करते हैं, महेश से प्यार करते हैं, वैसे तुमसे भी करते हैं। मतलब तुम अभी कतार में नए नए हो। And I too love you means you are the first one. तो I too love you मतलब TOO। Yes, TOO. When I am describing to here, it means TOO. Okay sir। Generally, we speak English without, getting anything in our brain. मैंने आपको रीजंस के साथ बताया कि आप अगर किसी को बताएं कि मी टू इज रॉन्ग से क्या बात कर रहे हो, मी टू इतना बड़ा कैंपेन था, मी टू पर इतना हल्ला हो गया, मी टू पर मीडिया आ गई, अभी 2 साल पहले मी टू कैंपेन एक इतना लंबा हाइप लिया था। Exactly sir। ऐसे गलत हो गया यार, ये ऐसे गलत हो गया। Now got it। Are you getting it? Yes sir। So please do not go by what others have to say. Understand what the right form of English is. क्या हेमलता जी, कुछ आई ओपनर हुआ? आंख खोलने वाली बात कर रहा हूँ सर, समझने की कोशिश कर रही हूँ सर। आई लव यू टू कोई बच्चे को बोल। देखिए, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। अब कोई लड़की अगर हमसे आके बोले आई लव यू टू, तो हम ही थोड़ी बोलने जा रहे हैं कि उसका ग्रामर गलत है। हम भी वो वहां ग्रामर थोड़ी चेक करते हैं। अब आपके हस्बैंड कितने भी अंग्रेजी के जानकार हों, आप उनको आई लव यू टू बोलिएगा तो वहां पर वो बेचारे एक्सेप्ट ही करेंगे, खुश ही होंगे। वहां पर थोड़ी बोलेंगे तुम्हारा ग्रामर गलत है इसलिए हम नहीं मानेंगे। Getting it? But being right and what is correct answer? I too love you. I too love। हम लोग बच्चों के साथ बोल देते हैं ना सर कभी-कभी। देखिए, आप किसके साथ क्या बोलती हैं वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा उससे कोई कंसर्न है। मेरी जिम्मेदारी आपको सही बताना। I love you। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं एवरीडे पर। एवरीडे पर अभी ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमको पता नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम पूछें यहाँ पे ग्रुप में, अच्छा शुभांजलि या हेमलता जी, डू यू ड्रिंक? ड्रिंक सर। डू यू आंसर ड्रिंक? करना है, आंसर करना है। हाँ, डू यू ड्रिंक? आंसर करेंगे तो बोलेंगे सर डू यू ड्रिंक। नहीं, मैं रियली पूछ रहा हूँ आपसे, रियली, डू यू ड्रिंक? अगर नो सर, मैं आंसर सोच रही थी इसीलिए मैं रुकी हुई थी। नो सर, नेवर। You don't drink? नो सर। Understand how naive we are, हम कितने नादान हैं। Is there any person on this planet Earth who doesn't drink?
Then you are talking about different things. You are talking about water. No. Definitely we will take this. मैं वही समझाना चाह रहा Without था। water we will not हाँ, live here. मैं वही समझाना चाह रहा था कि हम लोग जनरली जब ड्रिंक की बात करते हैं तो हम लोग ड्रिंक समझ लेते हैं, Exactly. अल्कोहल, राइट। अगर मुझे किसी से पूछना है कि क्या तुम शराब पीते हो, या क्या फला आदमी शराब पीता है, या क्या वो शराब पीता है, तो हम कैसे पूछें? तो इस दुनिया में 3 ही ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो कुछ नहीं पीती हैं अपने जीवन काल में। कौन? लिविंग थिंग्स में केवल 3 ही लिविंग थिंग्स हैं, एक और है जिसको मुझे याद नहीं आ रहा है। बस 3 ही लिविंग थिंग्स हैं जो अपने जीवन काल में कभी कुछ नहीं पीती हैं, राइट। गॉट एन अल्टीमेटम फ्रॉम द ऋषभ, मैं बता दे रहा हूं। लिजर्ड, स्नेक एंड बंगालीज। हाँ बंगाली Yes sir, yes sir. ट्रेन में भी Lizard, बैठने के बाद वो लोग पूछता है snakes, चाय खाओगे? बंगालीज। Yes sir, yes sir. আমি চায় খাবো, Yeah. আমি জল খাবো, আমি दारू खाबो, वो सब खाता ही है, वो अपने जीवन काल में कभी कुछ नहीं पीता है। बट सर हमारे यहाँ भी तो जनरली कोई भी किसी से भी बात करता है तो पूछता है डू यू हैव ड्रिंक और व्हाट समथिंग, वी विल डू यू हैव ड्रिंक्स, डू यू हैव ड्रिंक्स अलग चीज है, डू यू ड्रिंक अलग चीज है। क्या तुम पीते हो? तो कैसे पूछेंगे क्या तुम पीते हो, अगर मान लीजिए आप ही को मेरे से पूछना हाँ हो, मुझे वो जानना है। सर आप पीते हैं क्या, आप दारू वारू पीते हैं? सो द राइट क्वेश्चन इज डू यू बूज। डू यू बूज। सर स्पेलिंग लिख रहा हूँ। ओके सर। इसीलिए कहते हैं देयर बैन इन बिहार। बूज का मतलब नाउन के तौर पर शराब होता है और वर्ब के तौर पर शराब पीना होता है। तो आप बहुत अगर अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाइएगा, फैमिली रेस्टोरेंट्स में, तो आपको वहां पे मिलेगा बूजिंग नॉट अलाउड। बूजिंग नॉट अलाउड का मतलब हो गया यहाँ शराब पीना मना है। मना है। So the right way of asking this question is, do you booze? Does he booze? Okay. He boozes a lot. बहुत दारू पीता है। Do you drink? Of course I drink. You drink, your father drinks, your mother drinks, everyone drinks. Tell me a person who doesn't drink. Right from the time we open our eyes till the time we close our eyes. We open our eyes with drinks and we close our eyes with drinks. आंख खुलने से लेके आंख बंद होने तक हम पीते ही हैं। क्या पीने की बात कर रहे हो? So you want to ask, do you booze? Getting it? So we would actually deal in detail the auxiliary verb in the next class. ठीक है? Sure, sir. Yes, sir. I have an entire presentation ready with me. I could not share because there was a power failure. हाँ, everyday और daily नहीं बता पाए हैं। हाँ सर, एवरीडे, डेली और पर डे नेक्स्ट क्लास सर क्लियर कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर। Right? I hope you got many new things today. Yes, sir. Today's class is very interesting. Thank you. Right? Yes. Upcoming classes would be even more interesting. Don't worry about it. Thank you so much. Okay? Yes, sir. Okay. Good night, all of you. Good night, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Bye.
Good night, everyone. Good night, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Bye. Bye, sir.